پھر اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں جب بھی آپس میں لین دین کا معاملہ کریں، قرض کے لین دین کا بالخصوص، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو جب تم قرض دو۔ تو جو بندہ قرض لینے والا ہے وہ اس کو ایک معاہدہ جو ہے وہ لکھ لے کہ یہ میں قرض اتنے پیسے لے رہا ہوں، اتنے مدت تک کے لیے لے رہا ہوں، اور اگر ضرورت پڑے تو گواہ بھی بنا لیا کرے، دو مردوں کو یا ایک مرد اور دو عورتوں کو۔ اور پھر اگر تم سفر میں ہو، لکھنے لکھانے والا معاملہ ممکن نہیں ہے، تو پھر تم جو ہے وہ رہن رکھ لیا کرو کسی چیز کو۔ اس بات کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دی ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ ہم اپنی عادت بنا لیں کہ قرض کا جہاں معاملہ آئے، چاہے اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو ٹھیک ہے، اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو ضرور لکھ لیا کریں۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمیں کسی پہ اعتبار ہے، ہم قرض دے رہے ہیں، ہم ادھار لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو ہمیں اس پہ اعتبار ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ہمیں یہ ضرور لکھ لینا چاہیے، اس میں ہمارے ہی لیے خیر ہوگی۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے یہ بہت ہی فضیلت والا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے ون ٹو ون جو باتیں کی تھیں، اور جو انعامات، جو گفٹس اللہ تعالیٰ نے دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں سے ایک گفٹ یہ تھا کہ نمازیں فرض کی گئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ، اور دوسرا گفٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں گا، اس کے علاوہ جو بندہ بھی گناہ کرے گا، اور میں اس کو بالآخر بخش دوں گا اور اسے جنت میں بھیج دوں گا، لیکن مشرک کے علاوہ۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات عنایت فرمائی تھیں، اور ان آیات کے اندر ایک بہت ہی جامع دعا ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، یا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اویس اویس بھائی نے کوشچن پوچھا ہے آخری آیت کون سی ہے، تو آخری آیت جو میں پیچھے بول چکا ہوں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ آخری آیت ہے۔ یہ جو قرض کے لین دین کی والی جو سورہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، سوری سب سے لمبی آیت ہے قرآن کریم کی، اس سے ایک پہلی جو آیت ہے وہ ہے رب، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ ایک بہت جامع دعا ہے، ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اس کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے، اور اسے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ تو آج کی کلاس کیا خیال ہے، یہیں پہ ختم کریں یا آگے جاری رکھیں اس کو؟ ویسے ہماری اس میٹنگ کے 4 منٹ رہ گئے ہیں۔ چلیں جاری رکھتے ہیں اس کو، آج یہ پارہ ختم کر لیتے ہیں۔ 3-4 منٹ کے بعد میٹنگ اینڈ ہوگی تو دوبارہ سے جوائن کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اسے۔ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ ختم ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اب سورہ آل عمران ہم نے شروع کرنی ہے۔ سورہ آل عمران میں اس کا نام یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آ، اس میں عمران کی اولاد کا ذکر ہے۔ تو عمران کون تھے، اس کا ذکر آگے جب جہاں پہ آئے گا تو وہاں پہ بات کر لیں گے۔ بہرحال ان کی مناسبت سے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ اور دوسری بات، اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں جن موضوعات پہ بات کی گئی ہے، ہاں جی، کوشچن آنسر کا سیشن بھی ہوگا انشاءاللہ، کوشچن اپنے نوٹ رکھیں، یہ کوشچن آنسر کا سیشن آخر میں ہوگا۔ اہل کتاب کی جن موضوعات پہ بات کی گئی ہے وہ یہ ہیں کچھ کہ اہل کتاب کے گمراہ کن تصورات کا ذکر ہے اس میں۔ پچھلی صورت میں یہودیوں کا ذکر تھا، بنی اسرائیل میں یہودیوں کا ذکر تھا، اس صورت میں عیسائیوں کا بھی ذکر ہے۔ بہترین اور امامت کے منصب پر جو امت فائز ہے اس کی تربیت کی گئی ہے اس صورت کے اندر، اور غزوہ احد کے حالات پر بھی کچھ تبصرہ کیا گیا ہے۔
मुहकम और मुतशाबे आयात। कुरान करीम में कुछ आयात मुहकम हैं और कुछ मुतशाबे हैं। मुहकम आयात वो होती हैं जो बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिन्हें हमें जिसकी जिसकी तावील करने की, जिसकी तशरीह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, ये इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो हमें इसकी तशरीह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें ये समझ आ रहा है। इस तरह की और बहुत सी आयत हैं जो मुहकम हैं, जो बिल्कुल वाज़े हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये अपने माउस को, बिलाल असकर, संभाल के रखें ज़रा माउस को या अपने उंगलियों को। और कुछ आयत जो हैं वो मुतशाबे हैं, यानी वो हमें समझ नहीं आती, उनकी तावील की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे कुरान करीम में आता है कि यसअलूनका अनिर रूह, वो तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं कि रूह क्या है। कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि आप कह दीजिए कि ये अल्लाह के अमर में से एक चीज़ है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं दिया गया। ठीक है। और इसी तरह अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, मिसाल के तौर पे यहूदी कहते हैं वक़ालतिल यहूद यदुल्लाहि मगलूला, यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं। अब कोई बंदा ये सोचना शुरू कर दे कि ये हाथ अल्लाह ताला के हाथ कैसे होते हैं, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि यौम युक्शफ़ु अन साक़ैहा, कि उस दिन अल्लाह ताला अपनी पिंडलियां खोल लेंगे। तो कोई बंदा ये सोचना शुरू कर दे, इसको कुरेदना शुरू कर दे कि पिंडलियां क्या होती हैं। अभी इसी तरह आयतुल कुर्सी में ये जो जिक्र आया है कुर्सी का, वसिआ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, तो अब ये एक बंदा कोई क्वेश्चन करना शुरू कर दे कि कुर्सी क्या होती है, अल्लाह ताला की कुर्सी क्या है और कैसी है। तो ये वाज़े आयात नहीं है, इनके मतलब इतने वाज़े नहीं हैं। इन आयात को मुतशाबे आयात कहा जाता है। ये जो मुतशाबे आयात हैं, इनके बारे में अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि जो लोग ईमान वाले हैं, जो लोग रास्त रो हैं, वो लोग मुतशाबे आयात के पीछे नहीं पड़ते। मैं आपको एग्जैक्ट इसकी आयत का आयत बता देता हूँ। हाँ जी। वल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात व मिनहुन्न उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात, और जो कुछ आया अल्लाह ताला ने ये किताब नाजिल की, इसमें कुछ आयात मुहकम हैं और कुछ मुतशाबे हैं। मुहकमात जो हैं वो उम्मुल किताब हैं, यानी असल जो आयात हैं कुरान करीम के, जो असल है, वो मुहकम आयात हैं, यानी वो आयात जो वाज़े हैं। व उखर मुतशाबिहात, और कुछ इसमें मुतशाबे आयात भी हैं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, और जिन लोगों के दिलों में कजी है, जिन लोगों के दिलों में मर्ज है, टेढ़ है, जिन लोगों के दिलों में कोई खराबी है, तो वो क्या करते हैं, फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फितना, तो वो इन मुतशाबे आयात को कुरेदते रहते हैं। वो इन मुतशाबे आयात के बारे में क्वेश्चनिंग करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं कि इस किसी ना किसी तरीके से कोई फितना, कोई ऐसी बात खड़ी करें इन आयात के ज़रिए से। वब्तिगा तअवीली, और इनकी तावील को ढूंढते रहते हैं। वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, इसकी इन आयात की तावील अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। वर्रासिखून फिल इल्म, और उन लोगों के अलावा जो इल्म में रसूख रखते हैं, और जो इल्म में रसूख रखते हैं। वयक़ूलून आमन्ना भी, वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सब कुछ हमारे रब की तरफ से है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और जो इस बात को याद रखते हैं वो अहले अक्ल लोग हैं, वही इस बात को याद रखते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें एक और दुआ सिखाई है, वो ये है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ऐ अल्लाह, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। बाद इज़ हदैतना, इसके बाद कि तूने हमें हिदायत दी। ऐ अल्लाह, हमें हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। वहब लना
मिन लदुनका रहमा, और हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बड़ा अता करने वाला। वहाब का मतलब होता है अता करने वाला, देने वाला। अपने कैमरों को बंद रखें प्लीज। बेशक तू बड़ा अता करने वाला है। वहाब का मतलब होता है अता करने वाला, देने वाला। तो ये आयत भी ये दुआ भी बहुत अहम है, आपको ये दुआ याद करनी चाहिए। और अगर आप इस दुआ को अपनी हर नमाज के आखिर में जो दुआ मांगते हैं उस दुआ में भी शामिल कर लें तो ये बहुत ही बेहतर है। और मैंने सुना है कुछ उलमा से कि जो जो आदमी इस दुआ को अपनी नमाज का हिस्सा बनाता है, अल्लाह ताला यकीन इंशाअल्लाह यानी अल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पर फरमाएंगे। ग़ज़वा बदर का जिक्र इसके बाद कुछ थोड़ा सा किया है, और इस ये एक बहुत ही एक झलक दिखाई है। दरअसल ग़ज़वा बदर का जिक्र नहीं है, बल्कि कुफ़ार को एक तंबीह की गई है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ। जिन लोगों ने कुफ़र किया, ए लोगो जो तुम कुफ़र करते हो, तुम्हारे ये जो माल हैं और तुम्हारी ये जो औलादें हैं जिन पर तुम्हें बड़ा घमंड है, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। कदा भी आल फ़िरऔन, उसके बाद फ़िरौन का जिक्र किया, और अल्लाह ताला ने बताया कि उसको भी अपने ऊपर बड़ा घमंड था। वो भी अपने आप को कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, और अपने उससे अपनी लश्कर पे, अपनी सल्तनत पे, अपनी माल और दौलत पे उसे बड़ा घमंड था। लेकिन देखो अल्लाह ताला ने उसका क्या हाल किया। और फिर अल्लाह ताला ग़ज़वा बदर की मिसाल दे रहे हैं कि तुम्हें भी तो अपने ऊपर बड़ा घमंड था, और तुम जब अब एक गिरोह के साम अब जब एक गिरोह से तुम्हारा आमना सामना हुआ तो फिर देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ। तो अल्लाह ताला ने ये कुफार को एक तंबीह की गई है, और इसके ज़िमन में ग़ज़वा बदर का जिक्र आया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी के बारे में यह हमें बताया है कि दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कुछ आसाइशें दी हैं, उसको मुज़य्यन किया है कुछ चीज़ों से। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं औरत से, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, औरत की मोहब्बत से मुज़य्यन किया है। औलाद यानी अपने बिलखसूस बेटों की मोहब्बत से, माल से यानी सोने चांदी से, पैसे से, रुपए से, डॉलर से, यानी इन चीज़ों से मुज़य्यन किया है। और घोड़ों से यानी अपनी सवारियों से, और अपने कोठियों से और बंगलों से, और माल मवेशियों से, और खेतियों से और फसलों से, इन चीज़ों से अल्लाह ताला ने दुनिया को मुज़य्यन किया है। और अल्लाह ताला ने इन इन सब चीज़ों में शहवत रखी है। शहवत क्या होता है? शहवत कहते हैं लज्जत को। और ये लज्जत जो है ये एक हद तक, ये आप ये समझ लें कि ये नशा होता है। और एक हद से ज़्यादा जब ये बढ़ जाए तो ये इंसान को हलाक कर देता है। तो इन शहवत इन सब चीज़ों की एक हद तक यानी ज़रूरत की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब इंसान इनकी शहवत में पड़ एक हद से बढ़ जाए तो ये चीज़ें इंसान को हलाक कर देती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये कहा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी का समान है, और जो अल्लाह के पास है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, जो अल्लाह के पास है वो बहुत ही अच्छा है। और जो जो आदमी इन चीज़ों से लज्जत हासिल करे, एक एक मुनासिब हद में रहकर, और फिर सब्र करे, सब्र करने वाला हो, और सच बोलने वाला हो, और कनात इख्तियार करने वाला हो, इन चीज़ों में से जो चीज़ उसे मिल जाए उस पे कनात इख्तियार करने वाला हो, और फिर जो चीज़ उसे मिले उसमें से खर्च करने वाला हो, और फिर अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करने वाला हो, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि उनके लिए आखिरत में ये चीज़ें दी जाएंगी, उनको ये सब चीज़ें
اور बड़े और बेशुमार दी जाएंगी, और वहां पे किसी किस्म की कोई कैद नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला ने एक और हिदायत हमें फरमाई है कि दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम का दीन है। ये पीछे भी आया था, पिछले पारे में भी, कि अल्लाह ताला के यहाँ जो दीन काबिल कबूल है वो सिर्फ इस्लाम है, उसके अलावा और किसी दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। और याद रखिए कि ये दीन इस्लाम जो है ये अम्बिया आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है, और हर जो नबी था उसका दीन इस्लाम था, और उसके मानने वाले मुसलमान थे। और आज हम भी, आज जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, ये हमारा भी दीन इस्लाम है और हम भी मुसलमान हैं। तो ये कोई दीन ऐसा नहीं है, यानी इस्लाम का आगाज़ जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुआ, बल्कि ये आदम अलैहिस्सलाम से ही हुआ था। अहले किताब के जराइम। अब अहले किताब के जराइम का जिक्र आया है। कुछ जराइम अल्लाह ताला ने उनके यहाँ गिनवाए हैं, और वो जराइम हैं कि अम्बिया को वो कत्ल करते थे, और नेक लोगों को, अल्लाह के तरफ बुलाने वाले लोगों को, जो लोग अल्लाह की तरफ दावत देने वाले थे, उनको ये सताते थे, उनको भी कत्ल करते थे और उन पे जुल्म सितम करते थे। अल्लाह के फैसलों से बगावत करते थे, यानी अल्लाह ताला ने जो फैसले किए हैं, जो अहकामात दिए हैं, जो शरीयत नाजिल की है, उन लोगों को ये अल्लाह के फैसले पसंद नहीं आते थे, तो उनसे बगावत कर देते थे। क्या अच्छा, ये फिर जब जब भी अहले किताब की बात हो, जब भी साबका उम्मतों की बात हो, तो हमें वो बात जहन में रखनी चाहिए जो मैंने कल भी की थी, कि कुरान करीम में साबका उम्मतों के वाक़यात बयान करने का मकसद क्या है। यही मकसद है कि हम उनसे सबक हासिल करें। तो क्या हम आज अल्लाह ताला के अहकामात पे राज़ी हैं, या हम भी अल्लाह ताला से बगावत करने वाले हैं, अल्लाह ताला के फ़ैसलों से? क्या हमें अल्लाह ताला के फ़ैसले पसंद हैं या नहीं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं होता हमारे मुल्क में, हमारा जो कानून है, बाज़ जगहों पे हमारा कानून कुछ कुछ कहता है और अल्लाह ताला का कानून कुछ कहता है, बाज़ मकामात ऐसे हैं। तो क्या हम उन जगहों पे अल्लाह ताला का फैसला मानते हैं, या हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, अदालत में जाते हैं और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फैसला करते हैं? हमें ये बातें सोचनी चाहिए। मैंने सुना है, मुझे इस बारे में मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान के कानून में औरत जो है, बच्चा है, वो औरत की मलकियत समझा जाता है, औलाद जो है, मलकियत कह लें, या मतलब अ, औरत औरत से उसको निस्बत दी जाती है, जबकि मर्द जो है, जबकि इस्लाम जो है वो ये कहता है कि औलाद जो है वो मर्द की होती है, उसके पास रहनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान का कानून कहता है कि औरत के पास होनी चाहिए। तो बहुत से मैंने लोग जो है वो जब तलाक वगैरह के मसाइल होते हैं, तो बहुत से लोग अदालतों में चले जाते हैं, और औरतें, और ये कहती हैं कि उनकी औलाद उन्हें वापस मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो फिर उन्हें वापस मिल भी जाती है। ये इसका एक क्वेश्चन मेरे जहन में भी है, क्या ये ऐसा है? अगर कोई यहाँ पे एक्सपर्ट मौजूद है तो बता सकते हैं। बहरहाल इस तरह के मौक़ों पे हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम अल्लाह ताला के फैसलों को मानने वाले हैं, या अल्लाह ताला के फैसलों से बगावत करने वाले हैं। ये पाकिस्तान बनने से पहले भी ऐसे ही हुआ था। जब अंग्रेज आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने फौरन ही सब कुछ ख़त्म नहीं कर दिया था। उन्होंने जो अदालतें थीं, यानी इंग्लिश लॉ के मुताबिक भी अदालत जज बिठा दिए, और एक तरफ इस्लामी शरीयत के मुताबिक काजियों की अदालतें भी मौजूद थीं। तो उन्होंने ये कह दिया कि जिसे दिल चाहे वो जज के पास चला जाए, और हमारे कानून के मुताबिक फैसला करवा ले, और जिसे दिल चाहे वो चला जाए काजी के पास, जिसने इस्लामी शरीयत के मुताबिक फैसला कराना है वो काजी के पास चला जाए। तो हुआ क्या कि हम मुसलमान खुद ही काजियों को छोड़ के जजों के पास जाना शुरू हो गए, और करते करते नौबत यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने काजियों को उठा दिया, कि उन्हें कहा कि तुम्हारी तो ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई बंदा ही नहीं आता। तो ये क्या हमारा भी
یہ जो सोच है, हमारी रविश है, वो भी क्या इन बनी इसराइल वालों की तरह नहीं है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि वो अल्लाह के फैसलों से बगावत करते थे। अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की किताब में तहरीफ करते थे, उसको बदल देते थे। और ये जो अल्लाह ताला की किताब में तहरीफ करने वाली बात है ना, इसमें भी आपको मैं दौरे हाजिर के बारे में कुछ बता दूं कि हम लोग अल्लाह ताला के किताब में तहरीफ उसके अल्फाज में तो नहीं कर सकते, अरबी अल्फाज में तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ हमारा बस चलता है तर्जुमे के अंदर हम उसकी तहरीफ करते हैं। लोग क्योंकि लोगों ने तो अरबी ज़ुबान सीखनी नहीं है, इसलिए हम बड़ी आसानी के साथ हमारे कुछ लोग जो हैं वो तर्जुमे के अंदर अपनी मर्जी से अल्फाज डाल के और फिर लोगों को ये बताते हैं कि ये तो अल्लाह ताला ने कहा है। यही लोग, यही तर्ज जो है ये बनी इसराइल का था, यहूदी उलमा का था। वो अपने पास से यक्तुबून अल किताब अबी ऐदीहिम, अपने हाथों से किताब लिखते थे। सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और फिर उसे वो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर देते थे और कहते थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। हक बात को छुपाना, वो हक बात को जानते बूझते उसको छुपाते थे, आगे लोगों में डिलीवर नहीं करते थे। इस्लाम के खिलाफ साजिशें, ये जो मुनाफिकीन थे यहूदी मदीना के, इन्होंने इस्लाम के खिलाफ साजिशें, तरह तरह की साजिशें करते रहे। और एक इनकी साजिश जो थी वो शऊरी मुनाफिकत की साजिश थी कि कुरान करीम में इसका जिक्र आया है। वो ये है कि तुम सुबह तुम जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहो कि हम मुसलमान होने आए हैं और इस्लाम कबूल कर लो, और कुछ दिन बाद तुम दोबारा वापस काफिर हो जाना, पलट जाना, और कहना और लोगों को बताना, ऐलान करना कि हम तो मुसलमान हो के देख लिया है, मुसलमानों के अंदर और उनके नबी के अंदर तो ये खराबियां हैं। इस तरह तफरका डालो मुसलमानों के अंदर। ये इस्लाम के खिलाफ ये साजिशें करते थे। और ये बदयानत लोग हैं, दर हकीकत ये बदयानत लोग हैं। इनसे दोस्ती करने से मना किया गया है, अहले किताब से दोस्ती करने से, कुफार से दोस्ती करने से मना किया गया है। और दोस्ती से मुराद ये नहीं है कि हम उनके साथ मामलात ना करें, उनके साथ बैठ के खाना पीना ना करें, उनके साथ हम अच्छे ताल्लुकात ना रखें। दोस्ती का ये मतलब नहीं है। दोस्ती का यहाँ ये मतलब है कि हम उन पे ऐसा एतबार न करें जैसा एतबार हमें मुसलमानों पे करना चाहिए, अपने भाइयों पे, मोमिनीन पे करना चाहिए। ऐसा एतबार उन पे ना करें। ईसा अलैहिस्सलाम पर शिर्क का इल्ज़ाम लगाया, यानी शिर्क तो खुद इन्होंने करना था, अल्लाह ताला की तौहीद का इनकार तो इन्होंने खुद करना था। उसकी दलील के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम को पेश करते हैं और कहते हैं कि हमें तो ईसा ने ये तालीम दी थी कि तुम मेरी इबादत करो और मुझे पूजो, और मेरा बाप है नाउज़ुबिल्लाह, उसको तुम रब बनाओ, अपना आका बनाओ। तो इस बात की तरदीद की गई है इन आयात के अंदर। और बताया गया है कि कोई नबी, ईसा ईसा अलैहिस्सलाम तो दरकिनार, कोई नबी भी शिर्क की दावत नहीं दे सकता और अपनी उम्मत के लोगों को ये नहीं कह सकता कि तुम मेरी इबादत करो। बल्कि हर नबी ने यही कहा है कि मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है और अल्लाह ही की इबादत करो। और फिर इस्लाम दुश्मनी तो इनकी आपको मैं बता चुका हूँ। ये थे अहले किताब के जराइम। और काफिरों को दोस्त ना बनाओ, इसका भी जिक्र हो चुका है। अल्लाह ताला की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मशरूत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से मशरूत है। ठीक है। एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे है, तो ये ऑन रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्डिंग हो रही है। बात खतरनाक है क्योंकि आजकल के लोग ये तौहीन के फतवे बहुत जल्दी लगा देते हैं, इससे बड़ा डर लगता है। क्या आप लोगों ने कभी ये सुना है कि उलमा ने लोगों को अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ माइल किया हो, कि अल्लाह भी कोई ऐसी ज़ात है जिससे मोहब्बत की जानी चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मोहब्बत के बारे में हर कोई बताता है। क्या आपने कभी किसी आलिम से सुना है
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں لوگوں کو قائل کر رہا ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، ہم تو لوگوں کو اللہ سے ڈراتے ہی رہتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے ڈرنا ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسی ذات ہے جس سے ڈرا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے جو انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ بہت لمبا ٹاپک ہے یہ، اس کے بارے میں باقاعدہ لوگوں کو، آج کل کی نسل کو بالخصوص یہ بتانا چاہیے کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہے۔ تو اللہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو تم رسول کی اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ جب تم نبی سے محبت کرو گے اور نبی کی اطاعت کرو گے، جب تم سنت پہ چلو گے، تب ہوگا کیا کہ تم اللہ سے محبت تو کرو گے ہی کرو گے، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ اور پھر آگے آل عمران کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ آل عمران یعنی وہ آل عمران وہ عمران جس کے نام پہ اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عمران کون تھے۔ آج کی کلاس کچھ زیادہ ہی لمبی ہو رہی ہے، بہرحال چلیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں 5 منٹ کے اندر اندر، 5 سے 7 منٹ کے اندر۔ عمران جو تھے یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے، ان کی بیٹی، عمران کی بیٹی تھی مریم علیہ السلام، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی مریم، ان کے والد کا نام تھا عمران۔ ٹھیک ہے، اور زکریہ علیہ السلام بھی اسی دور کے تھے، اور زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپس میں ان کا یہ رشتہ تھا۔ اور زکریہ علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام۔ یہ تو ہے ان کا بیک گراؤنڈ، یہ عمران تھے کون۔ تو اب ان کے بارے میں ذکر کیا آیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، انہوں نے منت مانی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو جب پیدائش ہوئی تو جب پیدائش ہوئی تو وہ لڑکی نکلی، تو ان کی والدہ کہنے لگی انی وضعتها انثى، میں نے تو ایک لڑکی کو پیدا کیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں تو خوب جانتا ہوں تم نے کس کو پیدا کیا ہے، اور یہ لڑکی جو ہے یہ بہت ہی ولیس الذکر کالانثی، اور بہت سے مرد اس لڑکی کی طرح نہیں ہیں، بہت سے مرد اس لڑکی کی طرح نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال ان کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ جو منت مانی تھی کہ جو بھی اولاد ہوگی اسے اللہ کی راہ میں وقف کروں گی، تو ان کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور یہ بیت المقدس کے اندر ایک جگہ ان کے لیے مخصوص کر دی گئی، ایک حجرہ جس میں بیٹھ کے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے، ان کے جو خالو تھے وہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ زکریا علیہ السلام جب حجرے میں گئے حضرت مریم کی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں طرح طرح کے پھل پڑے ہیں، اور ایسے پھل پڑے ہیں جو اس علاقے کے تھے ہی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا کہ قالت یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ، وہاں پہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور زکریا علیہ السلام اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو، اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے مدد کرتے ہیں،
वहाँ पे उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे सालेह और नेक लड़का अता कर। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनको बेटे की बशारत दी। और इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम का बेटा हुआ जिनका नाम याह्या था। फिर उसके बाद मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत दी गई। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि ये जो अल्लाह ताला ने कहा है वो तो हो के ही रहेगा। अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा करते हैं तो वो कुन कहते हैं और वो हो जाता है। और फिर तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम से तशबीह दी गई है कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को क्या उसे कहते हैं, जो नेचुरल तरीका है बर्थ का, उससे हटकर पैदा किया गया था, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को भी ऐसे ही उससे हटकर पैदा किया गया। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र है कि माँ की गोद में उन्होंने लोगों से कलाम किया था और वो मिट्टी के परिंदे बनाते थे और वो फिर उनमें अल्लाह होंक मारते थे और वो अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा जिंदा होकर उड़ जाता था। और फिर वो कोढ़ी और अंधे जो पैदाइशी इन मर्जों में मुब्तला होते थे, इन बीमारियों में, उनको वो ठीक कर देते थे और मुर्दों को जिंदा करते थे। और लोगों के घरों के अहवाल बताते थे, लोगों को बता देते थे कि तुम आज घर में क्या खा के आए हो और जो आज तुमने घर में क्या क्या माल जखीरा करके रखा है। और फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को दावत दी, यानी वो यहूदी थे जिनकी तरफ ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, तो जब अल्लाह ताला ने इन यहूदियों को अल्लाह की तौहीद की दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए। और ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि कौन है, मन अंसारी इल्लल्लाह, कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह ताला के इस काम में। तो इस कुछ लोग उन पे ईमान ले आए और उनको जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ लोग ईमान ले आए थे और वो सहाबा कहलाते हैं, इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उन्हें हवारी कहा जाता है। हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम आपके मददगार हैं, हम अल्लाह के मददगार हैं और आपकी हिमायत करने वाले हैं। तो इस दो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के भी किस्से जो हैं वो सहाबा से मिलते जुलते हैं कि किस तरह यहूदियों ने इन पे जुल्म किया और किस तरह उनने जुल्म को सहा। बहरहाल बिलाखिर यहूदियों की साजिश इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ये ठान लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया जाएगा। और उन्होंने इसका इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला का इरादा कुछ और था। अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान पे उठा लिया लेकिन सूली पे नहीं चढ़ने दिया। मुबाहला की दावत देना, मुबाहला किसे कहते हैं? इसका पहले बैकग्राउंड समझ लें। दरअसल हुआ ये था कि नजरान से गालिबन ईसाइयों का एक वफ्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था आपसे मुनाजरा करने के लिए। ठीक है। ये तकरीबन 70 अफराद पे मुश्तमिल था और इनमें उनके उलमा वगैरह शामिल थे, यानी उनके जो माहिरीन थे वो शामिल थे। उन्होंने अपने शायरी में भी मुकाबला किया, उन्होंने अपनी जो खताबत थी उस फन में भी मुकाबला किया, उसमें शायरी में भी हार गए। शायरी में उनके किसी शायर ने शेर कहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन साबित को खड़ा किया, उन्होंने शेर कहे, उनका जवाब दिया। और फिर खिताबत में उन्होंने खिताबत का मुकाबला किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया और उसमें भी वो हार गए। उसके बाद उन्होंने ये जो दीनी मामलात हैं इसमें मुकाबला किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलाइल चाहे। और उन्होंने कुरान से बाकायदा कुरान के ज़रिए दलाइल दे के ये साबित करने की कोशिश की कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और आप देखें कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान से ये साबित करने की कोशिश की। तो बहरहाल इस आयत में उनके कुछ जवाब दिए गए हैं, हमने आज पढ़े भी हैं कि उन्होंने किस तरह वो कहते थे कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये इल्ज़ाम लगाया कि वो शिरक की दावत देते थे। तो अल्लाह ताला ने उसका रद्द किया है। और भी इसी सूरत के अंदर
बहुत सी चीज़ों का उनका रद्द किया गया है, उन उस वक्त के जो एतराज़ात थे उनका। बिल आखिर जब सारे दलाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके, लेकिन उन्होंने फिर भी ये बात नहीं मानी। सब वो वफ्द जो आया था ना, वो जाहिर है उस वक्त जो लोग सफ़र करते थे उनकी बीवी बच्चे भी साथ होते थे, क्योंकि उन्हें बहुत लंबे अरसे के लिए सफ़र करना पड़ता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुबाहला की दावत दी। यानी अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि कुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि आओ फिर अगर तुम नहीं मानते हमारी बात, तो आओ फिर यूं कर लेते हैं कि तुम भी आओ और हम भी आते हैं एक मैदान के अंदर, और तुम भी अपनी औरतों को लेके आओ, हम भी अपनी औरतों को लेके आते हैं, तुम भी अपने औलादों को लेके आओ, हम भी अपनी औलाद को लेके आते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो हम ये कहते हैं हम दोनों मिलके कि हम में से जो झूठा है उस पे अल्लाह की लानत हो, अल्लाह ताला उसे बर्बाद कर दे। तो ये होता है मुबाहला, कि मिसाल के तौर पे दो आदमी आपस में मुनाजरा कर रहे हैं और कोई आदमी किसी दूसरे की बात नहीं मानता, तो वो ये कहते हैं कि हम दोनों ये अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हम में से जो झूठा है अल्लाह ताला उसे हलाक कर दे। तो जाहिर है कि जो आदमी झूठा है उसे तो पता होता है कि वो झूठा है, तो वो ये दुआ नहीं करेगा। और फिर उस मौके पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने मुनाजरा कर रहे थे, और उन्हें पता था कि अगर हमने ये दुआ कर ली तो नबी के सामने यकीनन ये दुआ हमारी कबूल हो जाएगी और हम हलाक कर दिए जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस मुबाहला की दावत को भी नहीं माना। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ तज़किरा फिर से आया है। तो ये पुरानी स्लाइड में एक दफ़ा फिर आपके सामने रख देता हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के दोनों तबकात, यहूदी और ईसाई, इन इन दोनों इनके और बनी इस्माइल के यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन दोनों के जद्द अमजद थे। इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक दोनों से था, और ये दोनों ही अपनी निस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ करते थे, और दोनों ही कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये कहा है कि तुम झगड़ा कर, तुम कहते हो कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ना तौरात को मानने वाले थे, ना ही ज़बूर को मानने वाले थे। तौरात और ज़बूर तो सारी उनके बाद में नाज़िल हुई है, वो तो उससे पहले गुजर चुके हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि वो ना तो यहूदी थे और ना ईसाई थे। तुम कहते हो हम यहूदी हैं, तुम कहते हो हम ईसाई हैं, तो और फिर ये भी कहते हो कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ना यहूदी थे ना ईसाई थे, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले गुजर चुके थे, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो यहूदी थे या ईसाई थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो क्या थे, वो तौहीद परस्त थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो महज तौहीद परस्त थे, और उनकी इत्तबा, उनके पैरोकार तो दरअसल वही लोग हैं जो उनकी इत्तबा करने वाले हैं, यानी उनकी सुन्नत पर, उनके तरीके पर चलने वाले, उनके अकायद को मानने वाले लोग हैं। उनके पैरोकार तो वही लोग हैं। यानी कौन लोग, यानी ये नबी और इन पर ईमान लाने वाले, यानी ये जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इनके सहाबा हैं, यही दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, क्योंकि यही उनके तरीके पे चलने वाले हैं और यही उनके अकायद को मानने वाले हैं। सारी कायनात का दीन इस्लाम है। सारी कायनात का दीन इस्लाम है। सारी कायनात का दीन कहा गया है, सारे इंसानों का नहीं कहा गया, याद रखिए। तो सारी कायनात का दीन इस्लाम है, यानी आसमान, ये आसमान, ये ज़मीन, ये सितारे, ये सयारे, ये दरख्त, ये पहाड़, ये चरिंद, ये परिंद, ये कीड़े मकोड़े, और ये इंसान और ये फरिश्ते, यानी हर चीज़ का दीन है, और हर चीज़ का दीन इस्लाम है। ये बहुत ही जामे आयत है। इस आयत के बारे में एक पूरा जब कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह अलग से बात करेंगे। क्या आयत है, अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबगून,
کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے آگے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ جو کچھ بھی ہے، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ مسلمان ہے، طوعا و کرہا، چاہے وہ خوشی سے ہو یا کراہت سے ہو، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ سب کچھ اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ یہ سورج چاند ستاروں کا دین بھی اسلام ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہی اسلام ہے۔ سب سے آخری بات جو ہے اس پارے میں، اس پارے کے اندر تبلیغ کے دو اصول بیان کیے گئے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا اصول یہ ہے کہ مشترکہ باتوں پر پہلے بات کرنا۔ جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہوں تو آپ ان باتوں کا تذکرہ پہلے کریں گے جن باتوں جو باتیں آپ میں اور آپ کے مخاطب میں مشترک ہیں، ملتی جلتی ہیں، ان کا تذکرہ آپ پہلے کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے، یعنی جب اہل کتاب اس وقت سے بات ہو رہی ہے نا یہ عیسائیوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ کہا، قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اگر ہمیں جو اختلافی باتیں ہیں ان کو نہیں مانتے تو آؤ ان باتوں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہم دونوں میں مشترک ہیں۔ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دلائل سے ثابت کیا کہ تمہارا بھی جو ایمان تھا وہ یہ تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس طرح اور بھی کچھ باتیں اس آیت کے اندر گنوائی گئی ہیں۔ بہرحال جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مشترکہ باتوں پر بات کرنا، مشترکہ باتوں پر پہلے بات کی جائے، اس پہ اکٹھا ہوا جائے، اس کے بعد پھر جو اختلافی باتیں ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ اور دوسرا اصول جو اس پارے کے اندر تبلیغ کا ایک بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اب جو آپ کا مخاطب ہے، آپ جسے تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں، جسے دعوت دینا چاہ رہے ہیں، پہلے اس کی خوبیوں کی نشاندہی کریں۔ اس کے اندر اگر کوئی اچھائی موجود ہے تو اسے پہلے اس کی تعریف کریں، اسے نکال کے سامنے رکھیں، پھر اس کی خامیوں کا ذکر کریں، بعد میں اس کی خامیوں کا ذکر کریں۔ ٹھیک ہے؟ یہ کس آیت کے اندر ہے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اب اہل کتاب اور عیسائیوں سے جو مناظرہ ہو رہا ہے، تو ہم لوگ تو اپنے مخالف کا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بالکل ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اب اہل کتاب سے جب مناظرہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی تعریف کی ہے کہ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں، اتنے ایمانت دار ہیں کہ اگر آپ ایک خزانے کا ڈھیر ان کے پاس رکھ دیں تو وہ بالکل ایک ایک پائی لوٹا دیں گے، یعنی اس میں بالکل خیانت نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا، پھر بعد میں ان کی خامی کا بیان کیا کہ ان میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں، کہ ایسے بددیانت لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک رائی کا ذرہ بھی رکھو گے تو وہ بھی واپس نہیں ملے گا۔ تو یہ تبلیغ کے دو اصول بیان کیے گئے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے، ذاتی طور پہ میں یہ مانتا ہوں کہ جو پہلا اصول ہے یہ اتحاد امت کا بہترین فارمولہ ہے۔ یعنی ہماری امت میں جو تفرقہ پڑا ہوا ہے، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف مکاتب فکر میں بٹے ہوئے ہیں، تو ان کو اکٹھا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہی طریقہ ہے کہ ہم مشترک باتوں پہ ایک ہو جائیں۔ ہمارے اندر بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ ہماری نمازیں 5 ہیں، ان نمازوں پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، اور ہمارا قرآن، سب سے بڑھ کے ہمارا قرآن ایک ہے۔ قرآن کے جو عربی کے الفاظ ہیں، کسی کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم ان قرآن کے الفاظ پہ اگر ایک ہو جائیں، اور اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں، جو شرعی مسائل ہیں جن میں اختلافات ہیں، اس شریعت کے حوالے سے بھی، فقہ کے حوالے سے بھی بے شمار باتیں ہیں جو
हमारे मकातब फ़िक्र में, मैं फ़िक़ही लिहाज से बात नहीं कर रहा, मैं हमारे अकीदे के लिहाज से जो फ़िरके बने हुए हैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो बहुत सी बातें मुश्तरक हैं, हम उन पे अगर एक हो जाएं तो हम हमारी उम्मत का इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन ऐसा करने से कुछ लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं, कुछ लोगों का कारोबार बंद हो जाता है, और कुछ लोगों को ना, मैंने जैसे पहले जिक्र किया है, कुछ लोगों की जो शहवत होती है ना, लज्जत जो होती है ना, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। कुछ लोगों को तो उन चीज़ों की लज्जत होती है जो ऊपर जिक्र की गई हैं, लेकिन कुछ एक इसके अलावा और भी लज्जत की चीज़ें हैं। उनमें से एक चीज़ है ओहदे की लज्जत, जाह की लज्जत, ठीक है, अपने मनसब की लज्जत। तो जिस आदमी को 100-200 बंदा अपने पीछे जुमा पढ़ने वाला मिल जाता है ना, तो ये बहुत बहुत बड़ी लज्जत वाली बात है। तो ऐसे लोग कभी गवारा नहीं करते कि उनकी उनकी ये लज्जत ख़त्म हो जाए, उनकी दुकान बंद हो जाए। इसलिए ये लोग गवारा नहीं करेंगे कि उम्मत मुत्तफिक हो। लेकिन ये अगर मुत्तफिक होना चाहे, उम्मत अगर इत्तेहाद करना चाहे, तो ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो कुछ कहा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।